a language called C# in .NET, fine, and VB.NET in .NET. So we have two important languages in .NET called C# and VB.NET. There are several languages, but we mainly consider the C# and VB.NET. So you have to do practice in both languages, C# and what? VB.NET. आप दोनों की practice करें तो better है. Now you take any language of .NET. For every language there is a respective compiler. If you want to go for C#, there is a CSC compiler, C# compiler. If you want to go for VB.NET, there is a VBC compiler. The CSC for C# compiler and VBC for VB.NET compiler. You take any compiler of .NET and choose a certain language. इसको आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हो और इसको यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते. Put different language to different compiler. Now compile the program. So whenever you compile the program of any language of .NET by the compiler, just after compilation we get one file. It's called assembly. So what is in .NET? We have multiple languages in .NET, and for every language there is a respective compiler. The C# and VB.NET. For this we have two different compilers. As soon as when you compile the program, just after compilation, we get one file. This file is called assembly. Assembly क्या है? एक file है. And this file is in form of exe or DL. तो बालक क्या कर रहे हो? मालूम भाई, आप .NET का कोई भी एक लैंग्वेज लो, उसकी रेस्पेक्टिव कंपाइलर लो, और कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनेगी, उस फाइल को ये लोग बोलते हैं assembly. इज इन फॉर्म ऑफ exe और DL. DLL कब बनेगा? जब मेन नहीं हो. exe कब बनेंगे? जब मेन होंगे और यहाँ मेन ठीक है. So why you want to make a DLL and why you want to make a exe? Suppose what is in DLL? Class. What is in source code? There is a class paste, opening or closing braces. And what class can have? Variable and functions. Int type is a variable, and there is a function called string data. There is a function called data, returns as a what? String. You write here return. ठीक है, 120. Sorry. Suppose there is a function called data, returns as a what? Name. So इसको छोड़ो, ठीक है. Uncle, there is a class is having a function returns as a what? String. So this is the program I am writing without the main. So first of all, why I am writing without the main? What's the reason behind this? ऐसी क्या बात है इस प्रोग्राम में मेन नहीं? इसका मतलब ये है कि मैं सामान बेचना चाहता हूँ, खाना नहीं चाहता हूँ. This is a shopkeeper is selling items. जितने सामान पैक किए गए वो कस्टमर के लिए, not for himself. अगर आपकी प्रोग्राम कोई और एक्सेस करेंगे तो आप क्या बनाओ? DLL. बट आप अपना प्रोग्राम बनाओगे और खुद एक्सेस करोगे और खुद यूज करोगे तो क्या बनाओ? exe. इसी को लोग क्या बोलते हैं एक जमाने में? हेडर फाइल इन C++. इसी को जावा क्या बोलता है? बोलो पैकेज. अब इसी को बोलते हो कलेक्शन. ये CD है बेचने के लिए, तो CD क्या है? लाइब्रेरी. बट ये CD भी पर्सनल यूज के लिए. ये क्या बोलो? exe. You have to convince when you want to make a DLL, when you want to make a exe. It's a very first topic of .NET for assembly.
आपकी 3 क्लास इसी टॉपिक के ऊपर चलेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो व्हाट इज असेंबली, इट मीन्स यू कैन लर्न एनीथिंग इन .NET so easily. Every topic depends on assembly. So whenever you go for interview, they will ask starting with the assembly. Whether you go 5+ or as a fresher, you go for 10+ experience. They start what is assembly. Assembly is a compiled file. देखो compile के बाद बनी। So what is assembly? It's a compiled file. This file is in form of exe और DLL. बेटा आप बोलेंगे प्रैक्टिस की खुद या 2007 के पास आउट है बालक, काफी पीछे है। तो व्हाट इज असेंबली? बोलो व्हाट इज असेंबली? परफेक्ट। तो बेटा उसकी बातों में लगे आप एक्सपीरियंस आपके पास है। व्हाट इज असेंबली? आंख देख मेरे, व्हाट इज असेंबली? इट्स अ कंपाइल्ड फाइल, इज इन form of exe or DLL. This compiled file is made by might be or may be a compiler called CSC or VBC. What is in source code? Class, you can have variable or you can have multiple functions. But you are making a program for yourself, for self-use. I will go for exe. As a mother does, she makes a roti in a kitchen. She keeps in a hot case. That is called DLL for everyone use in a family. I want to go for making a program for self-use. Write a program in C# for Fibonacci series. अच्छा आपके लिए प्रोग्राम बनाओ सर? हाँ मेरे प्रोग्राम बनाएंगे। You have to make a DLL for me और उसको मैं यूज करूँगा। तो जहाँ तुम्हें बोले कि DLL और exe में डिफरेंस क्या है, तो बताओ बेटे इसको सिंपल बतलाओ। एक शॉप पे जितने सामान पड़े हुए हैं वो कस्टमर के लिए पड़े हुए हैं। 1 kg का चीनी पैक करके रखता है, 1.25 किलो चीनी दो, अब वो तौलता नहीं है, इट इज पैक्ड। तो उसको अगर चीनी की आवश्यकता पड़ गई वो पैक नहीं खोलेगा, वो बिजनेस करने बैठा है। If you want to make a assembly for self use, you go for exe. I want to go for multiple use, is for reusability. तो DLL से तुम क्या अचीव करोगे? रीयूजेबिलिटी। नहीं आया समझ में? हेडर फाइल क्या है? आज से 30 साल पहले किसी बंदे ने बना दी हेडर फाइल। हर जनरेशन के बच्चे सीख रहे हैं कि हेडर फाइल को iostream.h, math.h, streaming.h। जावा की लैंड पैकेज बन गई, यूटिल पैकेज बन गई, गेट7 पैकेज इन जावा। लोग 10 साल से यूज कर रहे हैं कि नहीं? तुम्हारे पापा ने घर बना दी, सब उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं? तो तुम्हारा पेन, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा मोबाइल, ये सेल्फ यूज के लिए, ये क्या बोलो? exe। तो तुम्हारे घर का किचन, तुम्हारी बाथरूम क्या बोलो? मल्टीपल यूज के लिए। दैट्स कॉल्ड DLL, इज कॉल्ड लाइब्रेरी। तो DLL मत कहो करिए, लाइब्रेरी बोलो। लाइक मेरी कॉलेज मेक्स वन लाइब्रेरी फॉर एवरीवन यूज। तो लाइब्रेरी अगर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और DLL का फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। डायनामिक लिंक का मतलब कोई भी आदमी इससे लिंक हो सकता है। म्यूजियम की एक लाइब्रेरी नहीं है, असॉर्टेड है, कलेक्शन है, संग्रहालय है। चाहे बुक की लाइब्रेरी हो चाहे किसी भी चीज की लाइब्रेरी हो, तो DLL से ज्यादा अच्छा बोलो क्या बोलो? लाइब्रेरी। ठीक है। अब बेटा मान लो मैंने निकाल दिया मेन को, तो मैंने एक क्यों बने क्या बात है बालक क्लास टाइमिंग देखो पड़ेगा थप्पड़ खाओगे जोर से खींच के मैडम। तो आपने एक बार सोर्स कोड लिखा, उसमें एक फंक्शन डाल दिया। अब बेटे कंपाइलर बोलता है कंपाइल करो, यहाँ पे कर्सर को रखो, इसे सेव करोगे हार्ड डिस्क में, कहीं कहीं सेव। नाम क्या आपका? शरद। C ड्राइव के अंदर हमने बना दी शरद नाम की फोल्डर, यहाँ पे सेव कर दिया test.cs। ये मेरे फाइल का नाम हो गया। ये नहीं कि मैं नाम कुछ भी दे सकूँ, मेरा मन, हम देते s.cs एनीथिंग। ये आपका सोर्स कोड हो गया। अब ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा? इसको इससे जोड़ दिया मैंने। कैसे जोड़ा? यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, क्या लिखा? cs s.cs। जैसे बेटा कंपाइल करने का ट्राई करा, एरर आ गई।
अब बालक जैसे ही क्लास खत्म लैब में जाएगा, ये तो उठाऊंगा बाहर से फेंकूंगा मिनट के अंदर, सुन रहा है? क्लास के बाद कहाँ जाएगा? लैब में। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखी, हार्ड डिस्क में सेव करी, जैसे ही कंपाइल करा, CSC C# कंपाइलर, फाइल का नाम .cs। और सुन लो, अगर लैब में दिक्कत आए जरा किसी का हेल्प मत लो, यू हैव टू बिकम प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर जब तक गलतियां नहीं करेगा सीखेगा नहीं। इन अ वेरी वर्स्ट केस यू कॉल द लाइब्रेरी इंचार्ज का अभिषेक होता है। इन अ वर्स्ट केस यू कॉल, बिल्कुल तुम थक जाओ तो किसी को बुलाओ, ज्यादा हेल्प लोगों से टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सोर्स कोड लिया, उसे कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनी, तो अगर आप जो कंपाइल करोगे लैब में जाकर उसको ऐसे, अब जैसे ही कंपाइल करोगे आपको एरर मिलेगा, एरर कंपाइल हो गए नहीं। अब मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, क्लास का सिंटैक्स बिल्कुल सही है, नेम कुछ भी तुम दे दो, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, हाँ रिटर्न टाइप प्रॉपर होना चाहिए, और यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, और रिटर्न के बाद भी स्पेस होना चाहिए। क्लास फंक्शन भी बंद हो गई, मेन भी बंद हो गई, आई मीन क्लास भी बंद हो गई। अब मैंने कौन सी गलती कर दी? सुपर। आप .NET के प्रोग्राम को बिना मेन का बाय डिफॉल्ट कंपाइल नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज्ड टू कंपाइल द प्रोग्राम विदाउट द मेन। तो बेटे नॉलेज मेन नहीं है, नॉलेज का डिलीवरी मेन। ये आपको देखना संदीप सर बोलता कैसे, कोई आपको मुझसे अच्छा पढ़ा देगा और मेरी अच्छी डिलीवरी, बस मुझे ये पता अपने बारे। सो व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर compiles the program and makes assembly, but there is one shart. Compiler can compile the program with one shart. अगर आपके मेन में, अगर प्रोग्राम में मेन है तो कंपाइल करो, अगर मेन नहीं है तो कंपाइल नहीं होगा। एक काम करो, इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल C। फिर बेटे क्या करो, अब जाके आप, इनका मैं नहीं जानता, दोनों को मैं नहीं जानता, अब लैब में जाओ, टीचर्स को बोलने की प्रैक्टिस करो, और किसी बच्चे को पर उसको सिखाओ। जितना तुम बोलोगे ना बेटे उतनी अच्छी जॉब लगेगी तुम्हारी। हमारे अंकल, डिलीवरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी सर्विंग अच्छी होनी चाहिए। वो प्रोग्रामिंग से नहीं होगा, बोलने से होगा। तो कंट्रोल C करा, नोटपैड खोला, प्रोग्राम को पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेव कर लिया, फाइल सेव एज, यू गो टू C ड्राइव एंड मेक वन फोल्डर, SHARAD, शरद। इस वाले फोल्डर में गए और प्रोग्राम को सेव कर लिया, कोई नाम दे दो। मैं डबल कोर्स क्यों देता? गलती से THC ना ले, गलती से THC ना ले, डबल कोर्स S.CS, मेरी पुरानी हैबिट है, मेरे कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी दे सकते हो S.CS, बट वो कभी कभी क्या ले लेता है, बोला ऐसे THC ले लेता है। और सेफर पॉइंट फिर हो गया वाला वहाँ पे सिलेक्शन, क्या बात है, छा गया। ऊप्स पूछेंगे, ऊप्स याद है ना मेरी क्लास के ऊप्स, और डेटाबेस का वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वो भी प्रैक्टिकल करूँगा, कोई वही करा था वही करूँगा। S डॉट, एक बार उसको फोन कर लो, श्रीवास्तव को पूछ लो सर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या बोलना है, बस बात खत्म हो गई। और ऑफर लेटर लेकर चलेंगे शॉपिंग के लिए, लो अंकल हो गया बड़ा। आप बस बोल के सुना दो, आपको नहीं, बच्चों को बोल रहा हूँ, मैं जॉब को सब तुमको दे दूँ कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम पढ़ाना पेशा नहीं है वाला। आप मुझे सुना दो ये सारा टॉपिक है .NET का, ये डेटाबेस का यूज कर, कल तेरी जॉब में मेरा संदीप करण। अगर मैं बेटा सेंटर 18,000 बच्चे पढ़ाए हैं तो मेरी ताल्लुकात पूरे नोएडा में, भगवान की रियासत में हर लोग नोएडा में जानता है संदीप करण कौन। आप मेरे से पढ़ने मत आओ बेटे, डिलीवरी लेने। जो हमने बोला आप मार्कर लो, पीछे वाले फ्लोर पे जाओ, बोलो, इन गधों को मत देखो, बोलो, बोलने की प्रैक्टिस करो। प्रोग्राम सबको आता है, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? साले खड़ा कर दो, ऐसे से कांपने लगते हैं। और 22 साल के बच्चे हैं, ये बच्चे छोटे कहाँ नजर आते हैं आपको, और सारे गलत काम करने को तैयार है, बट जहां तक बोलो ऐसे से कांपते हैं। So what is .NET?
आवाज सुन सर, इन .NET आप देख मेरा, इन .NET we have multiple languages, but my effort, my academic was MCA. I know better C or C++ and data structure, so I love to go in C#. Why? Because syntax matches there. आवाज और ट्राई नहीं मेरा, हम मेरी academic MCA है भाई, हमने ज़्यादा पढ़े हैं C वो केजी में, और डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं और C++ पढ़े हैं. I love to go in C#. जावा क्यों नहीं लिया? तो जावा ज़्यादा वेब की ओर भागती है, और C# ये पॉइंटर का भी सपोर्ट करता है, हार्डवेयर का भी सपोर्ट करता है. C# एज अ लैंग्वेज इनकैप्सुलेट द फीचर ऑफ C एंड C++. मदर के बाद अच्छी कौन लगती है? मासी. राइट? कि नेचर काफी मिलता है, डिफरेंस नजर नहीं आता हमें मासी और माँ में. सो C# एज अ लैंग्वेज विच इनकैप्सुलेट द फीचर ऑफ C एंड C++. इसलिए मैंने C# चूज किया. डजंट मैटर मैं जावा की शिकायत कर रहा हूँ, मैं शिकायत नहीं करता, बट आई लव टू गो इन वेब टेक्नोलॉजी एज वेल एज व्हाट माय प्रोग्रामिंग स्किल फॉर C एंड C++. मैं अपने बेस को छोड़ना नहीं चाहता सर. गुड, आगे बोलो. सर .NET का कोई भी लैंग्वेज लो, उसकी रेस्पेक्टिव कंपाइलर है. प्रोग्राम कंपाइल करेंगे सर, मत करो कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे सर. जैसे एज सुन एज व्हेन द प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड, बट कंपाइल का एक शर्त है, प्रोग्राम में मेन होना चाहिए. अगर मेन ना है तो एरर आएगा. उस एरर को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा कमांड लगाने पड़ेंगे. तब क्या बनेगा? बोलो DLL. वो क्या होता है? सर आप प्रोग्राम सेल्फ यूज के लिए बनाते हो, यू गो फॉर EXE. 1 रोटी 5 रोटी या 2 रोटी मेरी थाली, EXE. सब बहुत सारी रोटियां, एक हॉटकेस, DLL. So whenever I compile the program, just after compilation, one file is made. तो बेटे होता है कि अचानक आप जाते हो इंटरव्यू में, उसके बाद आपका नेगेटिव क्या है? आप बोलते कम और ज्यादा करते हो, बिकॉज यू आर डेवलपर. इसलिए बेटे कोचिंग सेंटर से पढ़ने बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होता है. मुझसे बात करो कि मास्टर का बेस्ट पर्पस क्या? सिलेबस कवर करना. उसका टारगेट होता है बेटे, अंकल एक टारगेट होता है. जॉर्ज ड्यूकेट मिरेकल में एक टारगेट है, और उसका मालिक बिजनेसमैन 30 आवर्स में टॉपिक होनी जानी चाहिए. चले कैसे भी करो, नहीं करोगे पैसा नहीं मिलता है. इसमें ड्यूकेट भी पढ़ाया, सब जगह पढ़ाया, बस अब बात सबको मैंने छोड़ दिया. ये पूरे बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस हॉब बना रखा है. इतने घंटे में सिलेबस डिलीवरी होनी चाहिए. सो व्हेनेवर आई कंपाइल, सुन कर ठीक है देखो यहाँ, whenever what is assembly, अब क्या बोलूँ, what is in .NET, क्या बोलूँ, what is compilation phase. Sir, .NET is having a several languages, but I could, due to my academic, my qualification, my heart, my conscience, my logic says I wanna go C#. Doesn't mean I cannot work in VB.NET. I can work, but you give me some time because I have to go for syntax checking and all that. हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों में काम कर सकते हैं. अब C# ऑफर करो, कोई दिक्कत नहीं है. VB.NET ऑफर करो. आपको जो काम्बोज पढ़ाते हैं, आपको जो काम्बोज पढ़ाते हैं, it works in VB.NET there. If you go to Mind interview, they will not ask single question from C#. And what is C#? The syllabus of C# is equivalent to the syllabus of what? VB.NET. You can convert the program of C# into what? VB.NET. Hardly matter. Nothing like beta, you will have a separate syllabus in VB.NET. What syllabus is providing in .NET for C#? Properties, indexer, reflection, delegation, whatever. Is very common in what? VB.NET. Can't you open 2 command prompts? One for C#, one for VB.NET. Even if you don't know VB.NET beta, do one thing. You will go to Google, write a program in C# for properties, take an example. And go to Google, convert the program. How I can convert properties in VB.NET. You can get a whole syntax and convert the program into Notepad and compile the program, baby. What is wrong in this? हमें ना नहीं बोलना है लोग. हमें तो ऐसा लगता है पहले जॉब दो मेरे को. आई वांट जॉब फर्स्ट. सुन रहा है वाला, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ. आई वांट जॉब फर्स्ट. ज़्यादा बहस मत करना. जॉब ऑफर लेटर लेके आओ. तो पंजाबी नहीं मांग लगाओ. पंजाबी है कि नहीं? पंजाबी है, वो दिक्कत नहीं तेरे को. पंजाबी नहीं मांग लगा. अगला बंदा वैसा बात, पॉलीमॉर्फिज्म. हम देखो दिल्ली में क्या पंजाबी डील करते हैं.
अब वो खड़े खड़े भेज देंगे सेकंड के अंदर। अब देखते रहे हुआ क्या मेरे साथ। दे नो हाउ टू डील द बिजनेस। ये जो ऑनर है उसके 120 मकान नोएडा में, किस ऑनर के? अमेरिका का बंदा 120 मकान रखता है और कपड़े का काम करता है। 3 भाई हैं और 120 फ्लैट ऐसा 3 फ्लोर का नोएडा में केवल। मिलोगे क्या प्यार से बात करेगा वो, बाय गॉड। और बोलता संदीप जी मैं आप ही का रेंट नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं किसी का रेंट नहीं छोड़ता। हर की बढ़ती है 10 ईयर्स 10%। मेरी 5 साल से रेंट अब तक नहीं बढ़ी। चलो एक जगह दुकान छोड़ के काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या भला बच्चों का भला कर दे। उसकी भतीजी यहाँ पढ़ने आई थी, तो जाने वाले भतीजी की जॉब लग गई। हाँ बस हमने ये करा, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के जॉब लगवा दी। बड़ा खुश है मेरे से। तो व्हाट इज इन .NET? वी हैव मल्टीपल लैंग्वेज। आवाज देख बेटा, आवाज पिच देखो बेटा। सभी तरह से पढ़ना नहीं है, इसके आदमी को समझना बनना है क्या, व्हाट ही इज। तो व्हाट इज इन .NET? नो आई। व्हाट इज इन .NET? इट हैज n number of languages. So I have practiced 2 languages for the job, for C# and VB.NET. Why you have learned VB.NET? Because I know some company are migrating from Visual Basic to what? VB.NET. Like mine was working in Visual Basic. Kambos sir was in earlier Visual Basic. Now he switched to VB.NET. अगर उनका प्रोजेक्ट C# में है, बंदा मुझसे पूरा पढ़ रखा है पहले से C#। वो 11 से ही कोर्स कर रहा है मेरे से, 11 का स्टार्टिंग से। तो बेटा व्हाट इज इन .NET? I take any language in .NET, I just compile the program and after compilation the program I get one file. ये वर्ड तब तक बोलते हो जब तुम आवाज प्रॉपर निकाल नहीं सकते हो मुंह से। You go till very last videos like this. और वो जो फाइल बनी असेंबली या तो exe के फॉर्म में होगा या तो DLL के फॉर्म में। बस शर्त है गुरुजी, अगर मेन ना होगा तो ये DLL ना बनेगी, सॉरी कंपाइल ना होगी, एरर आएगी। दिखाओ सर मेरे को। सेव किया, सेव कर लिया। गो टू फोल्डर कॉल streetwide cd/cdsharad। अब झंकार सर को फोन करना है अभी क्लास के बाद। करना संदीप सर ने बोला है कि थोड़ा टिप्स बदला दो, ऑप्टिमाइजेशन ग्रुप है, बदला देगा और किसी का टिप्स मत देना। इज ए फैंटास्टिक पर्सन। CSC C# कंपाइलर S.CS। बेटे पर्टिकुलर की बात बुला दे उसको। 30 बोल रखा आते हैं कैसे बेटा, ऑफिस जाना होता है इसको। कंपाइल करो, देखो अंकल दौड़ की जल्दी जाओ बेटा। 9 बज गए, पता है आपको? हाँ सर मगर में 12 बजे से यार। चल बताओ मैंने ये किया, बताओ। तो कंपाइल हो गई, नहीं हुई कंपाइल। देखो बेटे दिक्कत क्या, बच्चे जाते हैं लैब में प्रोग्राम लिखते हैं, घर चले जाते हैं। उनके बेटे बोलने की प्रैक्टिस कहाँ होती है? 3 महीने के बच्चे साला वही कर वही जो पहले था। बस गधे ने बस चंद लाइन सीख दी। बोलो कौन? .NET डेटाबेस रूप्स की बात तो साला फिर वही है, बात तो फिर वही है। ये जो आपका अभिषेक गुप्ता है, इसके लाजवाब नॉलेज है। साला दिक्कत क्या है इस गधे के साथ? इसके पुअर इंग्लिश है, अब पुअर प्रोनाउंसिएशन। अब पति उठ रहा है मेरे को। मैं सारे गधे को कहीं जॉब रखवा देता मिनट के अंदर। फंडू बनता है, इसलिए गधे को बोला तो बैठ लो, अपना प्रेजेंटेशन ठीक करो। इट मैटर्स इन इंटरव्यू, इट ओनली इट मैटर्स। मेन ही कंपाइल देख लीजिए क्या बोला, एंट्री नॉट फाउंड, मेन नहीं। तो क्या करूं? T फॉर टारगेट, T फॉर टारगेट। ये पूरी टारगेट लिख लो। मेरी टारगेट है बेटा रोटी पैक करना और मेरे भाई लोग खाएंगे। तो माई टारगेट इज टू मेक अ लाइब्रेरी, मत कर DLL, लाइब्रेरी। तो T फॉर टारगेट हमने पूरी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलन, हाँ ये कीवर्ड है याद रखिए, लाइब्रेरी। ये अपने मन से नहीं दिया है। उसके बाद LIBRARY। सो माई टारगेट इज टू मेक अ लाइब्रेरी। Why? I want to make a library. Why? For others use, for usability.
space S.CS. Now library is ready. Call assembly is ready. Call DL is ready. अब चेक करके देखो बेटा, बोलो 1 घंटा आप बोलो, तो अब कुछ फायदा नहीं होगा मेरे पास आकर। हमने इस गधे को नॉलेज दिया, बोलना नहीं सिखाया। अगर बोलना नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते थे। सॉरी। बहुत सारे बच्चे सेंटर बैठे हैं 4+ के, बहुत सारे बच्चे, एक को भेजा। He speaks better. He is a good analyzer because he is a businessman kid. एनालाइज करना आता है अगले वाले बंदे को। अगले वाले बंदे को हमें देखे बिजनेस करना है। चक्कर ये दैट्स फॉर इंटरव्यू। थोड़ी ईगो आ गई, हम गए। और एनसीआर का 80% रिजेक्शन जो होता है ड्यू टू ईगो होता है, एंड हेजिटेशन होता है, एंड पुअर कम्युनिकेशन होता है, और नॉलेज लाजवाब होते हैं। बन गई अंकल डीएलएल, बन गई लाइब्रेरी, बन गई एसएमबी। सुना है बेटा? बट एक गलत कर गया। पता है क्या? पता क्या गलती कर गया? देखिए गलती कर गया, हमारी क्लास की स्कोप इतनी अच्छी नहीं है कि हर आदमी लोग एक्सेस करे। आपने बेटे बस गलती साल ये करा, आपने रोटी बना के हॉटकेस को अपने रूम में रख दिया। क्या यार, साला थाली मिल गई, चम्मच मिल गया, सब्जी मिल गई, कहते रोटी नहीं मिल रहा है। साला हॉटकेस नहीं मिला, रोटी कहाँ से मिलेगा? जब भी क्लास लिख बेटा, पब्लिक लिख। क्या लिख? कि तुमने कहा था डिसेबिलिटी, हर लोग खाएंगे, तो कहते बना रोटी हॉटकेस में और कॉमन एरिया में रखो, हर के यूज का हो। क्लास मस्ट बी पब्लिक, इट हैज टू बी पब्लिक। क्लास के पहले क्या लगा दिया भाई? अगर ना लगाए तो क्या होगा? तो क्या यार, ना लगाओगे तो आप यूज कर पाओगे, अगला बंदा यूज ही नहीं कर पाएगा। मतलब आपने हॉट के छिपा के रख दी, इसका मतलब बस सेम प्रोग्राम में यूज हो पाएगा। नीचे बालक, जिस बच्चों को बोलने की दिक्कत है, अपना पहले बोलना सीखो। नॉलेज कोई बड़ी चीज नहीं है यार, कड़ी लोग। आपकी बन गई, दोबारा फिर से कंपाइल हो गई। अब इसे यूज करना है। अब जो यूज करेगा करेगा। अब यूज करने से पहले क्या बनेगा? एक डॉक फाइल बनेगा, इसको डॉक्यूमेंटेशन बेटा। वहां तो क्या लिखेंगे? डीएल का नाम, स्पेलिंग छोड़ो, डीएल का नाम, नीचे बोलो कौन होगा? क्लास का नाम, नीचे बोलो क्या होगा? फंक्शन का नाम, और फंक्शन का बोलो क्या? रिटर्न टाइप। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर आपको इंग्लिश आनी चाहिए वहां पे। ये कह लो बेटा, इस आईटी इंडस्ट्रीज में प्रोग्रामिंग कम है, इंग्लिश ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। लोग पागल है जावा और डॉट के पीछे। एक कौन बच्चे यूपी और बिहारी, चक्कर ये उठ रहा है। और दिल्ली बच्चे बड़े चालाक होते हैं इस बारे में, इस मामले में। उनकी अच्छी इंग्लिश होती है, अब पुअर नॉलेज होती है, उन्हीं की ज्यादा जॉब लग रही है। आपको बेटे प्रोफेशनल मेंटेन करना है दोनों। मैक्सिमम इंग्लिश देन प्रोग्राम, या बोल बोल के प्रोग्रामिंग कर। ना आई हैव गॉट अ DLL, I have got a class, I have got a function returns respectively this. Now sir, best of luck, you go and use my program. ऐसे बोलो, सब सुनेंगे, हंसेंगे, हंस करो। अब बेटा बन गया, बन गया। अब क्या करेंगे? हमने कहाँ से पता किया? उस डॉक्यूमेंटेशन से DL की कहानी क्या थी। क्यों? हमारे पास सोर्स कोड तो नहीं है ना, हमारे पास क्या है? DL है। अब यहां आ गए यूजिंग को भी छोड़ो, पब्लिक क्लास चेक। कोई बंदा एक्सेस कर रहा है, पब्लिक क्लास चेक, और क्या लिखा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ये क्यों लिखा बेटा? जब तक मेन नहीं होगा, बेटा फंक्शन कॉल नहीं। ब्रेन CPU। अब यहां पे
उस क्लास का बोलो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये यहां बना लो एक फंक्शन, यहां बना लो। उस क्लास का नाम क्या था? टेस्ट। बालक फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम, और क्लास में फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का तो समझ देखो दिमाग कहां लगेगा। अब वो बालक कॉपी देखनी पड़ेगी क्या बालक? टेस्ट क्लास का नाम है, टीएस की बोलो क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं करोगे फंक्शन कॉल नहीं होगा। पेट्रोल भर दिया, अब गियर चेंज करो या स्टार्ट करो, पहले मेमोरी तो दो। तो न्यू साइकिल क्या होगा? मेमोरी एलोकेट होगा। तो बोलते हैं खुराक, यार बहुत थक गए, नहीं थके हुए नहीं, बिल्कुल सही है यार, भूख लग रही है, चलने का मन नहीं कर रहा है, पेट में दर्द हो रही है, सब मेमोरी दो पेट में। तो अच्छा पढ़ने के लिए भैया अच्छा खुराक होना मस्ट है, इसको मेमोरी एलोकेशन। तो न्यू से क्या करा? मेमोरी एलोकेट करी। किसकी? किसकी? ऑब्जेक्ट की। चलो बेटा मान लो आपको सुने यार मेमोरी एलोकेट क्या होता है, भूल गए वो दिन? साले शर्ट होता है, ये पॉकेट तो है ही नहीं, पॉकेट तो है ही नहीं, यहाँ देते हैं हाथ। तो बेटे ये हाथ यहाँ क्यों दिया? इसकी मेमोरी क्या बोलो? एलोकेट है। हमें बनवानी है ड्रॉन, मेमोरी एलोकेट करो। तो बेटा न्यू से क्या होता है? मेमोरी एलोकेट। नींव बनना, घर बनना, रूम बनना, मेमोरी एलोकेट। अच्छा खर्चा तो करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो खर्चा बोलो किसका हो रहा है? रैम का। बोलो खर्चा किसका हो रहा है? बोलो रैम का खर्चा हो रहा है। चीज वही है, तरीका अलग है बोलने का। अब टी बन गया तेरा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से क्या करेगी? फंक्शन कॉल करोगे, टी डॉट डेटा। अब तो बालक क्लास खत्म होने वाली है। और जब दियो स्ट्रिंग एक्स, तो ऑब्जेक्ट कॉल करा, आई मीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो क्या देखा बेटे? फंक्शन कॉल करने से पहले हमने न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करी। क्या मतलब हुआ? एक गेस्ट के आने से पहले हमने चेयर का अरेंजमेंट कर दिया। बेटा चेयर क्या मतलब? मेमोरी एलोकेट हो। अब गेस्ट बैठे, अब फंक्शन कॉल हो। और कंसोल, अब कंसोल एक क्लास है। अगर कंसोल क्लास है, ये किसी न किसी नेम स्पेस में होंगे। ये किस नेम स्पेस में? सिस्टम नेम स्पेस में। तो यहां क्या लिखा? यूजिंग अ सिस्टम। व्हाट इज यूजिंग? यूजिंग इज अ कीवर्ड टू इंपोर्ट इन नेम स्पेस। यूजिंग इज अ कीवर्ड टू इंपोर्ट द नेम स्पेस। वो तो मेरा माल आ गया, यूजिंग माल मतलब क्या हुआ? मेरे सारे सामान आ गए। सारे सामान बोलो कहां आते हैं? माल के अंदर। तो यूजिंग सिस्टम मीन्स आई वांट टू इंपोर्ट इन नेम स्पेस, नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। लेना, और क्या लेंगे भाई? नेम स्पेस में क्या होंगे बेटे? क्लासेस होंगे। इंपोर्ट अच्छे वर्ड को नहीं खोजते इंग्लिश का। बाय यूजिंग कीवर्ड आई कैन इंपोर्ट अ नेम स्पेस। एंड व्हाट इज नेम स्पेस? नाम ही है नेम स्पेस। ये मेरी जगह है, ये आपकी जगह है, वो आपकी जगह है भाई। आपका जो घर का जो पूरा बाउंड्री वाल है, वो एरिया पूरा क्या बोलो? नेम स्पेस है। तो यूजिंग नेम स्पेस, इससे क्या मैं घर के हर रूम को यूज कर सकता हूं। अब कंसोल जो क्लास है अंकल, इसी नेम स्पेस के अंदर। तो कंसोल क्लास डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन इज ए फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्टैटिक फंक्शन। कोई अगर क्लास के नाम से कॉल हो रहा है, वो स्टैटिक फंक्शन। इसका मतलब उससे कॉल करने के लिए मेमोरी एलोकेट की आवश्यकता नहीं है। मत का ऑब्जेक्ट, मेमोरी एलोकेट बोल, मत का बेटा ऑब्जेक्ट। क्यों?
ऐसे ऐसे पागल आईटी में बंदे बैठे हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट से भी स्टैटिक फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये मत बोल, फंस जाओगे इंटरव्यू में। सीधे बोल दो कि मेमोरी एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या मतलब हुआ? मतलब आपकी मम्मी ने रोटी बना दी, आप गए और किचन में रोटी लेके चले आए, खाना खा लिए। इस काम को करने के लिए आपने मेमोरी एलोकेट नहीं करा है, आपकी मम्मी ने मेमोरी एलोकेट करा है। मेहनत किसने करा? आपने नहीं करा है। क्या लगा रही है? कंसोल इज ए क्लास, राइट लाइन इज स्टैटिक फंक्शन एंड एक्स दे दिया। और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने इस क्लास के बोलो ऑब्जेक्ट का मेमोरी एलोकेट करा, तब उसको बुलाएंगे, तब वो कॉल करेगा। आप देखो, आप सुबह यहाँ आते हो, हर बच्चा का सेंटर आता है तो उसका सुबह 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया खर्च जरूर होगा यहाँ आने के लिए। तो बेटे फंक्शन कॉल होने के लिए पैसा खर्च हुआ कि नहीं? चलो आप पैदल ही आए, आपकी एनर्जी तो गई, कुछ तो गया, जैसे फिजिक्स। तो व्हाट इज मेमोरी एलोकेट? टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ऊर्जा इज रिक्वायर्ड, वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, करंट इज रिक्वायर्ड। इसको मेमोरी एलोकेशन। आप बेटे 1 मिनट के लिए अगर टीवी ऑन करोगे तो आपका मेमोरी एलोकेट होगा। इसको कंजम्पशंस ऑफ एनर्जी और करंट और पावर, ये सोच के चलो। आप कहीं सेव कर दो trial.cs। बेटे अब समझाने वाली बात है कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों बनाया ऑब्जेक्ट? सर क्या है, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे आपके फंक्शन कॉल नहीं होंगे। तुमने ये क्यों लिखा? सर किसी को कॉल करेंगे, मेमोरी को एलोकेट करना पड़ेगा। ये कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहा है? वो सब CLR करता है कि मेरी प्रोग्राम को मैनेज कौन करता है? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। मेमोरी एलोकेट बेटा OS नहीं कर रहा है, बोलो कौन? तेरे दादाजी मेमोरी एलोकेट नहीं कर, तेरे पापा मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तुमको पहले ही कहा था कि .NET, लास्ट क्लास में कहा था, कल ही कहा था कि .NET OS के ऊपर नहीं चलता है, CLR के ऊपर चलता है। तो मेमोरी एलोकेट कौन करेगा? CLR। और फ्रीज भी कौन करेगा? फ्रीज मतलब वॉशअप भी कौन करेगा? बोलो CLR ही करेगा। जितना लिया वापस लो, रिक्लेम बोलते हैं, रिक्लेम। अब देख, अब क्या हुआ बेटे, इस वाले प्रोग्राम से किसी की बनी DLL और तूने उसकी क्लास का कैसे बनाया ऑब्जेक्ट? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। क्यों? सोर्स कोड तेरे पास नहीं है। अब ये वाला बंदा अगर प्रोग्राम कंपाइल करेगा, दिमाग लगा, ये वाला अगर बंदा प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो ये जो भी काम कर रहा है इसके ऊपर कर रहा है, प्रोपोर्शनली डिपेंडेंट। बनाना ओम्स लॉ, G इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V/R। तो एक आपकी करंट जो है वो डिपेंड करती है, बोलो किस वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? बोलो करंट पे। और उस पर भी डिपेंड, रेजिस्टेंस के ताप पे भी डिपेंड करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको आप बोलते हो। तो बेटे बोले ये वाला प्रोग्राम इस पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला प्रोग्राम तभी चलेगा अंकल जब इसके साथ ये रहेगा, तो जोड़ा बनकर। जैसे बैलगाड़ी के पहले 2 बैल हैं, एक बैल से बैलगाड़ी ना चलेगा। तो ये वाला कंपाइल नहीं होगा। क्यों? ये वाला बंदा उसके वाले क्लास का क्या कर रहा है? बोलो ऑब्जेक्ट बना रहा है। संग चलेंगे साथ दोनों। देख लो यहाँ पे, देख क्या है, क्लास का नाम है। यहाँ तू देख, तूने क्या लिखा है? यहाँ तूने क्या लिखा है? ये नाम कहाँ से आ रहा है? वहां से आ रहा है। इसी को बेटे बोलते हैं एसोसिएशन। इसी को बोलते हैं पॉइंटर में रेफरेंस।
एक पॉइंटर अगर बनी है तो दिमाग में लेके चल एक वेरिएबल के लिए बनी है, दिमाग में लेके चल कि बिना वेरिएबल का पॉइंटर की आवश्यकता नहीं है। एक दो आंख और एक अंधेरा रूम, एक अंधेरी रूम, कोई फायदा इस आंख का नहीं, कोई काम का साला आंख नहीं है मेरी, मैं भी अपने आप को देख नहीं पा रहा हूं। सारा काम ब्रेन का हो रहा है, महसूस के ऊपर, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। जब सीन द मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन जो डकैती कर लेता है वो बैंक के अंदर, कौन सी मूवी थी? आंखें। क्या बंदे ने प्लान किया उस मूवी में, एक अंधे से डकैती करवाया, हर एंगल पे, हर स्टेज पे, हर डायमेंशन पे कैसे मूव करोगे। तो ये कहने का मतलब है इसके पास इसका रेफरेंस होना चाहिए, बात खत्म। तो उसके लिए अगर ये मिसिंग है तो अब एरर आ जाएगा। उसके लिए CSC आर फॉर रेफरेंस। अभी तुम दे दो किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो 1 मिनट में पढ़ा देगा और आएगा सर उसको मैंने पढ़ा दिया। अरे बेटा प्रोग्राम उसको एक्सप्लेन कराओ पहले, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट है, इसको डॉक्यूमेंटेशंस। आपने रेफरेंस क्यों लिया, सब मुझे बताओ पॉइंटर क्या है। फिर आप देख बेटा क्लास चलिए डॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, पॉइंटर की, बताओ पॉइंटर क्या है। आप लिखो मेरे सामने एक चीज, बोलो क्या लिखो, सब लिख के दिखाओ मेरे को। इन स्टार PTR लिखो सर, बोलो PTR से क्या करो, बोलो क्या करोगे PTR से। आप बताओ क्या करोगे इस PTR से। इस आंख का बताओ क्या करोगे, अंधेरे बताओ, अंधेरे में क्या करोगे आंख का। सर तो अपने उंगली को भी नहीं देख पाओगे तो। अब लो, अब लो, अब PTR के पास क्या आ गया, X का रेफरेंस आ गया। इसलिए बेटा जब भी टाइम मिले आप C पढ़िए, डेटा स्ट्रक्चर पढ़िए, रीजनिंग सॉल्व कीजिए। यही आपकी लाइफ, यही आपकी लाइफ। आप जानने वाले बच्चे हो, जो जिस बच्चे के द्वारा तुम आए हो, मैं उसको बेटे जैसा मानता हूँ, आप उसके नाम से आए, आप ईमानदारी से पढ़िए। ऐसा ना कि डॉटिंग के चक्कर में आपका फंडामेंटल खराब हो, वो ध्यान रखिए। मेरे घर के कोई फैमिली मेंबर आते हैं अंकल पढ़ने के लिए, मैं बोलता हूँ मामी या चाहे मासी कोई भी हो, इनको अभी ना भेजो। क्यों बेटे, अभी आप 1 महीने के बाद भेजो। क्यों, आप उनको बोलो 1 महीना बैठ के घर पे क्या पढ़ेंगे, C और डेटा स्ट्रक्चर, तब मेरे सेंटर में। एक लड़का है, वो दूर का रिलेटिव लगता है मेरा, तो उसका B.Tech कंप्लीट हुआ, अन्ना मलाई पता नहीं कहाँ है, बोला कहीं पे चेन्नई में कहना है। उसका B.Tech फाइनल हो रहा है मई के लास्ट में। तो मैंने कहा रिश्तेदार है, तो मैंने कहा 1 महीने के बाद आप CS पढ़ के आओ। चलो DS से मत पढ़ के, आप C का फंडामेंटल पढ़ के। कि चीजों को सुधारने में दिक्कत आपको फिर नहीं, ना आपको। अरे लोग पागल हो गए जावा और डॉट के पीछे, NCR के बच्चे, UP और बिहारी बस। और जो चलाक बच्चे दिल्ली क्यों नहीं पढ़ते हैं कभी, ऊपर अपना फंडामेंटल ठीक करके आते हैं मेरे पास। ये हो गया आपका। उनको पता है दिमाग क्या है, कि क्या पढ़ के जाए और क्या मिलेगा मुझे। जावा डॉटेड से लॉजिक नहीं मिलेगी अंकल, बस आपका सिलेबस हो जाएगा। R फॉर रेफरेंस, तो रेफरेंस किसका काम है भाई, पॉइंटर वाला काम है। अच्छा सर रेफरेंस ले रहे हैं, ओके ओके ओके, उस वाले प्रोग्राम को जोड़ रहे हैं। अच्छा ये C से ये फायदा होता है कि आपकी चीज की जो स्पीडिंग ऊपर एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अरे लेटेस्ट C की बुक आती है, बच्चा कुछ मत कर बेटे, कुछ मत पढ़े, लेटेस्ट C की बुक आती है पॉइंटर वाली, चला पन्ना उसको पढ़, बस पेंसिल ले ले और प्रोग्राम को लिखता है C, लेटेस्ट C यशवंत कानतकर, और इसको सॉल्व उसकी एक्सप्रेशन भी करता है, बस वो पढ़ जाएगा, एक्सप्रेशन नहीं पढ़ता है। क्यों, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसमें। वो करता है क्या, महान आदमी एक प्रोग्राम लिख देता है, देखा है तूने,
और नीचे लिखा होता है एक्सप्लेनेशन। देखा है तूने? बस वो कर। तुम भी इस प्रोग्राम को देख रही हो, हम भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो देखते हैं तुम दोनों को मेरे बेटे किसका एक्सप्लेनेशन। तो बेटा नया कुछ नहीं आएगा, बस नया क्या आएगा? रिप्रेजेंटेशन। समझ गए? तो कॉलम क्या देंगे बोलो? s.dll और उसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या था बोलो? tr.cs। अब तूने क्या देखा बेटे इस प्रोग्राम में? जो बंदा एक्सेस कर रहा था उसका स्कोप तू कर भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? किसी और को यूज कर रहा है। I don't want program, I want explanation of the program। बात ये उठ रही बेटे, तू बता डॉट का क्या पढ़ेगी मुझे? साले हर प्रोग्राम YouTube पे दे रखा है, बट स्टेप्स बताता है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और तू यहाँ पे क्यों आई है? संदीप करण से एक्सप्लेनेशन लेने के। तो ये कहानी है बेटे, सेव कर। अब किसी चीज को इतना बड़ा खींच सकते हैं ड्यू टू एक्सप्लेनेशन। अब हो गया। अब क्या करो? ये पॉइंटर वाला काम चल रहा है और टीआर करा। आपकी बोल क्या बन गई? एक्सी बन गई। देख अब देख, अब संग संग चलेगा। अगर मैं किसी को पेन ड्राइव में अंकल अगर ये दूं, सॉरी ये दूं, तो ये भी देना पड़ेगा। अरे बोलो। अब चला पता याहू मैसेंजर के सीडी में क्या होता है, MS ऑफिस की बेटा सीडी में क्या होता है, MS ऑफिस की सीडी में क्या होता है। एक EXE होते हैं, हजारों क्या होते हैं बोलो? DLLs होते हैं। और चलो एक DLL बेटा मिसिंग हो गई, वो वाला पोर्शन काम नहीं करता है और दिखाता भी है फाइल मिसिंग। आप इग्नोर कर देते हो या रिट्राई कर लेते हो या आगे कैंसिल नहीं करती, आगे बढ़ जाती है। उससे बेटे का वो वाला पार्ट नहीं चलेगा, पर काम तो होगा ना। तो नया कुछ कहा है बेटे? पढ़ा कौन सकता है? जो पुराना है। नया बंदा बेटा ऊपर से पढ़ाएगा, उसके पास केवल जावा और डॉटेड की एक्सप्लेनेशन है, उसके पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं। अब टीआर क्या करा बोलो? अब तुम उस पढ़े होते संदीप करण से, अब जल्दी स्टार्ट करें उसकी बैच सैटरडे को, वीकेंड बैच। वहाँ आप ज्वाइन करके अपना स्टार्टिंग से फंडा क्लियर करो। पर बेटे उस पढ़े होते सर घरे को छोड़, मेरे वाले बोला सर को छोड़। क्यों ऐसे नहीं कर सकते थे सर? अरे बोल यार, अपनी क्लास को उस क्लास से क्या कर लेते बोलो? इनहेरिट कर लेते। ये उसका फायदा हो गया। और यहाँ पे आके अब बेटे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, डिराइव क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। यार मैं इनहेरिटेंस क्यों करूं? प्रतीक इनहेरिटेंस करूं क्यों? मैं नहीं करूंगा। तब करूंगा बेटा इनहेरिटेंस अगर तेरे पास कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होगा। तो उसकी क्वालिटी को ओवरराइड कर सकता है। एक बाप बनने से पता है बेटे आदमी में ड्रामेटिकल चेंज आती है। अब मुझे दायरे में रहना पड़ता है। शाम में मैं चाह के बाहर नहीं जा पाता हूं, मुझे घर जाना पड़ता है कि मुझे टाइम देना है घर पे। क्यों? बच्चा मेरा वेट करेगा। ओवरराइड बोलो कौन? तो बेस क्लास के पास वर्चुअल फंक्शन होनी चाहिए जो डिराइव क्लास से कर सके, बोलो ओवरराइड कर सके। एक बाप ऐसा जिसमें कोई वर्चुअल फंक्शन ना है, बाप किसी काम कर रहा है। क्यों? उसका बेटा और इस बाप को यूज करेगा। एक बाप के पास 3 फंक्शन होने चाहिए। एक मेंबर फंक्शन जिसको बेटा यूज करेगा,
एक वर्चुअल जिसको ओवरराइड करेगा और एक साले से को ठीक करवा मुझे आ रहे थे तो आज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन is a pure father, is an absolute father, is a definition of father. Father gives loves, father gives inspiration, margdarshan, and father says, beta, where you are nowadays? कहाँ थे तुम? टाइम पे क्यों नहीं आते घर? Abstract function is a complete definition of father for base class. But base class is having only what? Functions. अब मैं टॉपिक से बाहर निकल गया, कोर्स खत्म हो गया. अगर बेटे मान लो बेस क्लास में केवल बोलो मेंबर फंक्शन होता तो वो डिराइव क्लास और इस बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करता. ये बाप की गलती है, बच्चे को डाटा क्यों नहीं बचपन में. आज बच्चा उसके हाथ से बाहर निकल गया. हमारा एक अंकल अब डांटोगे उल्टे बेजती सुनोगे. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप रिएक्ट करोगे, एक्ट करोगे, चलो वो भी रिएक्ट करेगा.